Hello guys, welcome to Developments of Developer. Have you ever think how to score above 90% in the MSBT exam? If yes, then you are at the right place. आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो सिंपल है, प्रैक्टिकल है और जिससे तुम अपने मार्क्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो. So welcome all of you, the student of Diploma in Computer Engineering K scheme. Do you know how important is the MSBT final year score or final year percentage? अगर आपको अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है देन यू विल हैव टू स्कोर अबव 90% बिकॉज टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कट ऑफ बहुत हाई है और अगर आपको अबव 90% है देन नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट एडमिशन इन द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस. तो बच्चों फिक्र मत करो, मैं आज तुम्हें वही स्टडी स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे आप लोग अबव 90% स्कोर कर पाओगे. इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास कंप्लीट रोड मैप होगा जिससे कि तुम कॉन्फिडेंटली पढ़ाई कर पाओगे और अपना टाइम मैनेज कर पाओगे और 90% से ऊपर स्कोर कर सकोगे. सो गाइज लेट्स बी. लेट मी इंट्रोड्यूस DOD in short. We work for the Diploma MSBT student of Computer Engineering, Information Technology and the Artificial Intelligence branch. We provide a free and high quality study material. We also offer a comprehensive guidance and we are going to share a free video lectures. We also assist the student to complete their capstone projects and micro projects. These are the 5 key points we are going to cover in this video. First, the importance of marks in the diploma final year. Second, the syllabus overview of the CO5K means fifth semester syllabus. Third, how to manage time and what should be the ideal schedule of the final year diploma student. Study methodology and mistakes not to do. So let's begin. अगर आपको डिप्लोमा के बाद अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि CUEP, PICT, VJTI, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसमें एडमिशन लेना है तो यू विल हैव टू क्लियर इट्स हाई कट ऑफ. जैसे कि CUEP का कट ऑफ जाता है 98%, PICT का जाता है 96%, ऑल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस का जाता है 93 to 94%. So you must have to score above 90%. I hope your why has been clear, that why you have to score above 90%. And this should be your goal in this semester, that I have to score above 90%. This is your syllabus guides. There are three main theory subjects. First one is operating system, second one is software engineering, and third one is elective subject. You have to choose any one from these three subjects like advanced computer network, cloud computing, or data analytics. Okay, there are three practical subjects. First one is entrepreneurship development, where you will learn about the business and how to start startups. Okay. Second one is the seminar and project initiation course. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. यहाँ पे आपको जो फाइनल ईयर का कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग आप करोगे. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. एंड द लास्ट वन इज द internship. Okay, so your internship has started from the first week of June and it will end the last week of August. So this is a 3 month internships. I hope the syllabus has been cleared. तो भैया अब करना क्या है? Okay, where we have to focus, what action we have to take. So friends, in this 3 month you have to focus on the internship and start the self study of any two subject from the three main theory subjects. Like you can start the self study of the operating system or software engineering, or any two subjects like operating system or elective. Okay, and your goal should be clear in your mind, that I have to score 70 out of 70 in the end semester exam in each theory subject.
and score 30 out of 30 in the unit test of each theory subject. ओके, देखिए, अगर आपको यूनिट टेस्ट में 30 आउट ऑफ 30 और अबाउ 28 मार्क है, तो आपकी कॉलेज फैकल्टी आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स देते हैं. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट. You can score 70 out of 70 also, 30 out of 30 in the unit test also. Okay. I have scored 65 marks in the operating system. I know it is possible, but it depends on a student mindset. Okay. Some students think only about the passing marks, but that is not sufficient to score above 90%. Okay. And you will have to do some hard work for it. So guys, I hope this concept has been cleared. Okay, move to next part. Let's see what is the proper way to study theory subject. Imagine that you are going to start the study of new unit. Okay, so आपको क्या करना है, एक पेज पे यूनिट का पूरा सिलेबस लिखना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द यूनिट 3 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये मेरे सब पर्सनल नोट्स है. जैसे मैंने यूनिट का नाम लिखा है और यूनिट का पूरा सिलेबस यहाँ पे नोट डाउन किया, आपको सिलेबस सिलेबस कॉपी में मिल जाएगा, और जो कि एमएसबीटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है. सो आपको क्या करना है, 3.1, 3.2, 3.3 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ऑल सब टॉपिक्स लिख लेने हैं. ओके, एंड यू हैव टू अलोकेट टाइम टू ईच सब टॉपिक्स, कि आप ये टॉपिक को कितने समय में कंप्लीट करोगे. जैसे कि प्रोसेस, you can complete this in the one day. So similarly, you have to allocate time to each topic. Okay. Then after you can refer the notes of DOD, means developments of developer के आप notes refer कर सकते हो. You have to learn concept and write own notes on the notebook. आप लोगों को खुद के नोट्स बनाने, जैसे मैंने खुद के नोट्स बनाए. देखिए, इस सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो. From first year, I used to write my self notes, okay, my own notes, but I refer it from the either from books or from my teacher notes, okay. So you have to write your own notes. 5 days a week, daily you have to study 1.5 hour. मतलब 1.5 घंटा आप लोगों को पढ़ाई करना है. 1.5 hour फॉर हार्ड सब्जेक्ट एंड 1 1 hour फॉर द सिंपल सब्जेक्ट. ओके, देखिए, अगर आप डेली 1 to 1.5 आवर पढ़ाई करते, ओके, फॉर ईच सब्जेक्ट एंड कंसिस्टेंटली यू आर स्टडिंग इट, तो बिफोर 1 मंथ ऑफ योर एग्जाम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ओके, एमएसबीटी का सिलेबस इज नॉट सो वास्ट सिलेबस. ओके, इट इज वेरी इजी सिलेबस. ओके, बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम यू विल हैव टू कंप्लीट सिलेबस, बिकॉज बाद में आपका सबमिशन आता है. ओके, और बाद में आपका फाइनल यूनिट टेस्ट आता है. ओके, एंड यू विल आल्सो नीड सम टाइम फॉर प्रैक्टिस. ओके, उसके बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन बैंक. आई विल गिव क्वेश्चन बैंक. ओके, you have to solve that question bank, which includes previous year questions, IMP questions, numericals. Okay, and before solving question bank you will have to revise the notes. Okay, you will have to learn notes, you have to revise notes, and then you have to solve क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस. ओके, प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा बेस स्ट्रांग हो जाएगा. एंड एमएसबीटी के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं. So the question which you will solve from the question bank, we will practice it after the completion of unit. So it will be very easy to you to write it in exam. Okay. So I hope you will have understand how to study theory subject. Okay. Let's see realistic daily schedule. ओके, तो आपको क्या करना है, दो स्टडी स्लॉट डिसाइड करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 AM to 7 AM
एंड 6 p.m. टू 9 p.m. ऐसे दो स्टडी स्लॉट डिसाइड किए. इन द मॉर्निंग स्लॉट यू हैव टू स्टडी हार्ड सब्जेक्ट. ओके, तीनों सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है वो आपको इस वक्त पढ़ाई करना है. आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, ओके, जो इजी सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ना है. यू कैन गिव 1.5 आवर टू ईच सब्जेक्ट. ओके, सो आपको शेड्यूल को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बहुत इजी है. यू आर लक्की, के स्कीम के स्टूडेंट बहुत लक्की है. उनको थर्ड ईयर में सिर्फ 3 मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बल्कि आई स्कीम के जो बच्चे थे उन्हें 5 मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना था. ओके, so you just need to be focused during studies. Okay, so let's move on to next topic. अब बात करते कुछ ऐसे मिस्टेक्स की जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते एंड लेटर दे रिग्रेट ऑन इट. तो अगर तुम इस गलतियों से बच गए तो तुम्हारा अबाउट 90% का गोल सेफ है. ओके, सो लेट्स सी इट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कि अपने गोल को कभी नहीं भूलना है. यू हैव टू रिमेंबर दैट यस आई हैव टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन ऑपरेटिंग सिस्टम. आई हैव टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आई हैव टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन माई इलेक्टिव सब्जेक्ट. ओके, तो अपने गोल को भूलना नहीं है. सेकेंड वन इज द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. देखिए, आपको कर्म करना है तो कंसिस्टेंटली करना है. ओके, यू डोंट हैव टू स्किप योर टास्क. ओके, देखिए, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही आपको पढ़ाई करनी है. ओके, सो जो 5 दिन कर रहे हो तो फुल फोकस के साथ कीजिए और पूरे 5 दिन कीजिए. एक भी दिन स्किप मत कीजिए और प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए. ओके, देन आफ्टर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग स्टडी टाइम. सो देखिए, दिन में सिर्फ आपको 5 घंटा पढ़ाई करना है. ओके, एंड सिर्फ 5 घंटा आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी है. यू जस्ट हैव टू skip Instagram. Okay, Instagram Reels, YouTube Shorts for the 5 hours. Okay, and you have to be focused and study without getting distracted. Okay. Fourth one is give up on the difficult topic. देखिए, if you are studying, obviously कुछ टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगेगा. ओके, सो आपको गिव अप नहीं करना है. यू विल हैव टू गिव मोर टाइम फॉर इट. ओके, वो आपको समझना है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आप उस टॉपिक को समझिए, बट गिव अप करके पढ़ाई छोड़ के कुछ नहीं होने वाला. ओके, सो डोंट गिव अप, अंडरस्टैंड इट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग. बहुत सारे बच्चे अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट और जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसको इग्नोर करते हैं. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. सो अभी 3 महीने का इंटर्नशिप है तो आप सबने अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रेडी कर लेना है. ओके, जो स्किल्स आप सीख रहे हो, ओके, उसको आपको रेडी कर लेना है. ओके, आई विल ऑल्सो अपलोड वन वीडियो ऑन द कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप गाइड. Okay, so after this video I will work on this video. Okay, you will able to see that video soon. Okay, so आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मीन्स प्रैक्टिकल वर्क और कैपस्टोन प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है. जो स्टडी प्लान मैंने बताया वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो, जो स्टडी मेथोडोलॉजी मैंने बताई वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो यस, आपकी करेक्ट वे में स्टडी पूरी नहीं होगी और देन यू विल फेस प्रॉब्लम वाइल एग्जाम. ओके, सो अगर आपको परफेक्ट बनना है तो आपको मेरा दिया हुआ स्टडी प्लान फॉलो करना हो. ओके, सो दिस वाज सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स सम स्टूडेंट डू व्हाइल स्टडिंग. कि अगर आपने ये गलतियां नहीं की तो यस, डेफिनेटली यू कैन स्कोर अबाउट 90%. ओके, डियर फ्रेंड्स, join the WhatsApp group for the free study material of the fifth sem. Follow the Instagram page Sumit Joshi 1140. And if you really like this video, then please subscribe the channel. तो दोस्तों, आज हमने एक क्लियर रोड मैप देखा कि कैसे एमएसबीटी फिफ्थ सेमेस्टर में अबव 90% स्कोर किया जा सकता है. टाइम टेबल, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, मिस्टेक्स टू अवॉइड, सब कुछ.
सो जो प्रॉब्लम तुम लेकर आए थे, कंफ्यूजन, स्ट्रेस और लैक ऑफ प्लान, उसका सॉल्यूशन अब तुम्हारे पास है। जस्ट रिमेंबर कि आपका गोल सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। मेहनत करो इस तरह कि कल रिजल्ट सिर्फ नंबर ना हो, एक कहानी बन जाए। सो गाइस, डू हार्ड वर्क, be positive and start your journey of final year positively and achieve your goal. Thank you very much, guys.